I rise to apprise this august House of certain recent developments pertaining to Bangladesh. As honourable members are aware, India-Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. Since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch. So, despite a Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that the Prime Minister, Sheikh Hasina, should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. On 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. तो चुनावों के बाद ही ये स्थिति थी और अभी भी स्थिति बेहद खराब हो गई है। अब बात करेंगे कि पाकिस्तान को गर्त में भेजने में शामिल कट्टरपंथियों के निशाने पर अब एक और देश आ गया है। बांग्लादेश में मचे तांडव के पीछे उसी कट्टरपंथी संगठन का हाथ भी माना जा रहा है और दावा भी किया जा रहा है कि इस उलटफेर के पीछे पाकिस्तान से ही फंडिंग हुई है और हिंसा को भड़काने के लिए कराची से ही ऑर्डर आ रहा है। कौन सा है ये कट्टरपंथी ग्रुप, आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। बांग्लादेश के वो 45 मिनट जिसने सियासी तख्ता पलट कर दिया, लेकिन इन 45 मिनट की स्क्रिप्ट बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी और इस पटकथा के लेखक थे कट्टरपंथी। ये वही हैं जिन्होंने मुल्क में बढ़ते हिंसा को मौके के तौर पर लिया, जिसके बाद बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा। जिस कट्टरपंथ की वजह से पाकिस्तान कंगाली की कगार पर है, जिस कट्टरपंथी संगठन के कारण पाकिस्तान में अनाज की जगह आतंकवाद पनप रहा है, उसी राह पर बांग्लादेश भी बढ़ चुका है और इसका उदाहरण पिछले कुछ महीनों में सामने आया है, जब बांग्लादेश को आरक्षण के विरोध में हिंसा की आग में झोंक दिया गया। जुलाई में शुरू हुई इस हिंसा में नाम सामने आया पाकिस्तान परस्त जमात इस्लामी पार्टी का,
खबरों के मुताबिक इस विरोध प्रदर्शन को विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामी का समर्थन हासिल था, जिसके बाद शेख हसीना सरकार ने 1 अगस्त को जमाते इस्लामी, इसकी छात्र शाखा और इससे जुड़े अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। बैन लगाने का फैसला हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेतृत्व वाली 14 पार्टियों के गठबंधन की मीटिंग में लिया गया। इस फैसले के पीछे की वजह आतंक विरोधी कानून के तहत कट्टरपंथी पार्टी पर आंदोलन का फायदा उठाने और लोगों को हिंसा के लिए बरगलाने का आरोप था और बांग्लादेश की सियासी घटनाक्रम के पीछे इस बैन का गुस्सा भी माना जा रहा है। जमाते इस्लामी एक राजनीतिक पार्टी है जिसे बांग्लादेश में कट्टरपंथी माना जाता है, जो पूर्व पीएम खालिदा जिया की समर्थक दलों में शामिल है। जमाते इस्लामी की स्थापना 1941 में ब्रिटिश शासन के तहत अविभाजित भारत में हुई थी। 2018 में बांग्लादेश हाईकोर्ट के फैसले का पालन करते हुए चुनाव आयोग ने जमात का पंजीकरण रद्द कर दिया था और वो चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गई थी। ये कोई पहली बार नहीं था जब कट्टरपंथी जमाते इस्लामी पर बैन लगाया गया था। इससे पहले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली पहली सरकार ने भी इस पर बैन लगाया था। उसके पीछे की वजह बांग्लादेश की आजादी का विरोध करने के साथ पाकिस्तान की कब्जे वाली सेनाओं का सहयोग करना था। हालांकि बंगबंधु की हत्या के बाद सैन्य तानाशाह जनरल जियाउल रहमान ने प्रतिबंध हटा दिया था, जिसके बाद कट्टरपंथी पार्टी ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया। 1 अगस्त को कट्टरपंथी पार्टी पर बैन लगा और 4 दिन बाद यानी 5 अगस्त को मुल्क में सियासी उलटफेर हो गया। हालात ये हो गए कि शेख हसीना को सिर्फ 45 मिनट का वक्त दिया गया। इधर जमाते इस्लामी पार्टी की समर्थक खालिदा जिया को जेल से रिहा करने का ऐलान कर दिया गया है, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश में भी कट्टरपंथ अपनी जड़ें मजबूत करने में लगा है, क्योंकि पाकिस्तान में भी चुनावी राजनीति में जमाते इस्लामी शाखा सबसे प्रमुख है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बांग्लादेश की 25 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में मुस्लिम दंगाइयों ने की बर्बरता की हदें पार। आवामी लीग के 24 नेताओं को जिंदा जलाया। उपद्रवियों ने गाड़ियों ने शव रखकर निकाला जुलूस। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम को आग के हवाले कर दिया। इसी के साथ आग लगने से उठा धुएं का गुब्बार। बांग्लादेश में हिंसा की भेंट चढ़े हिंदू दंगाइयों ने कई मंदिरों में आगजनी की है। भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में तोड़फोड़ की। बांग्लादेश में हिंदू और मंदिरों को टारगेट कर रहे दंगाई। बांग्लादेश में मुस्लिम समुदाय ने हिंदू गांव पर किया हमला। घरों को घेरकर हिंदुओं को गांव से बाहर निकाला। वीडियो सामने आया। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। मंदिरों और हिंदुओं पर किया गया हमला। प्रदर्शनकारियों ने मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ा है। अवामी लीग की सह सचिव सुमन खान के घर को दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। कूच बिहार बॉर्डर के पास मौजूद घर में सोमवार दोपहर को आग लगाई गई। किसी का हताहत होने की खबर नहीं। उपद्रवियों ने बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर कप्तान मशरफे मुर्तजा के घर में आग लगा दी। शेख हसीना के बेहद करीबी माने जाते थे मशरफे मुर्तजा। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के बनने में अहम रोल निभाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को नहीं छोड़ा। प्रदर्शनकारी ढाका में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर चढ़कर तोड़फोड़ करते हुए भी दिखाई दिए। बांग्लादेश की एक और जेल पर दंगाइयों का हमला। सतखीरा में जेल पर दंगाई भीड़ का हमला। हमले के बाद करीब 600 कैदी यहां से फरार हो गए। उत्तरी बांग्लादेश में डंडों और पत्थरों से लैस भीड़ ने जेल में घुसकर उत्पात मचाया। 20 आतंकवादियों समेत 500 से ज्यादा कैदियों को छोड़ाया गया। कई जगहों पर आगजनी की गई। बांग्लादेश के ढाका में कई जगहों पर हुई फायरिंग। झड़प का वीडियो भी सामने आया है। बड़े पैमाने पर देश भर में हो रहा है प्रदर्शन। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने कई पुलिस स्टेशनों पर हमला किया। जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी की। पुलिस स्टेशन से हथियार, गोलियां और अन्य सामग्री लूटी गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले। तख्ता पलट के बाद टारगेट पर हिंदू। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को गांव से निकाला। बांग्लादेश में उपद्रवियों का तांडव जारी है। विद्रोहियों ने शेख हसीना की पार्टी के एक और ऑफिस को निशाना बना लिया है। आवामी लीग पार्टी के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की गई।
प्रधानमंत्री आवास में उपद्रवियों का बवाल, तोड़फोड़ के साथ ही लूटपाट को अंजाम दिया गया। कीमती सामान लेकर भागे विद्रोही। ढाका में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के दफ्तर पर उपद्रवियों ने हमला बोला। कार्यालय के बाहर लगे होर्डिंग को गिरा दिया गया। दफ्तर में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में नहीं खत्म हो रहा प्रदर्शन का दौर। पुलिस और आवामी लीग ने उत्तरा में एक इमारत की छत से प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की है। शेख हसीना की सत्ता बेदखल होने के बाद भी जारी है बवाल। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के बने चित्र को जेसीबी की मदद से गिरा दिया है। पीएम आवास में प्रदर्शनकारियों का कब्जा। कैंपस में बने तालाब में वोटिंग करते हुए कैद हुए हैं। ढाका की सड़कों पर शेख हसीना के खिलाफ लिखे स्लोगन, तानाशाही खत्म और न्याय मिलने की बातें लिखी गई हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने पर उपद्रवियों ने मनाई खुशियां। यहां पर नाचते हुए तस्वीरें भी सामने आई हैं।